Very good morning to all of you. I'm here to start with you CA Final Costing new syllabus. What is the official name of this subject, costing? Strategic Cost Management and Performance Evaluation. Earlier the name of the subject was Advanced Management Accounting in CA Final. But whatever the name be, okay, we'll always call it as costing. We had been calling it as costing and we shall continue to call it as costing. कॉस्टिंग, ऑल्दो द ऑफिशियल नेम एक बार फिर से लिख देते हैं, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. In short, you can abbreviate this subject as SCM and P. Even if I will not tell you, you will abbreviate it as SCM and P because you won't tell the full name, that is Strategic Cost Management and Performance Evaluation. Earlier the name was Advanced Management Accounting and we had been calling it as AMA, or very easy to call it as costing. Acha, has somebody seen the module of this subject? The institute study material for this subject? Nobody has seen it. Okay. If you will just go through this module, what you will find is that you have nearly 30 practical questions. Just 30 practical questions. A practical subject like costing module contains only 30 practical questions. Do you know why is it so? This is because this is no more a pure practical subject. Your costing is no more a practical subject, pure practical subject. In fact, this is an analytical subject now. At the end of the course, you will find that at the end of the book, you will find that there are certain case studies provided to you. What are those case studies? Basically, you will be put in a certain scenario, you will be put under a certain condition, wherein you will have to decide what would be the right strategy, what would be the right concept of costing that need to be applied here. You will have to behave as a chartered accountant while doing your examination paper, wherein you will have to decide what would be best for my client, how the client should go for applying the costing technique, or what procedure your client should adopt in order to reduce the cost and to gain much. So this practical subject, this pure practical subject has been converted into a more of an analytical subject. So you will have practical problem also, along with you will have to apply your analytical skill also. Achha. Wherein when you have to answer case studies, you just don't need to have a good understanding, you must have a good writing power too. अगर आपको बहुत अच्छा लिखने नहीं आता है, ठीक है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो you won't be able to write the case studies properly, ठीक है. So therefore you will have to have a wonderful knowledge of the subject, you must have the practical skill as well as you must have the good writing skill in order to understand a case study and to write it better, present it better in the examination. The subject SCM and P has been divided by your institute into two categories. One is, let me write the full name. One is strategic cost management and decision making. Other is performance evaluation and control. Strategic cost management and decision making, I am talking about according to your institute module. Although in my module, the book which you will get from me will contain several more chapters, as because I have bifurcated into smaller chapters, right? According to institute module, this is chapter number 1 to chapter 7, and chapter number 8 to 12 is your performance evaluation and control. Chapter number 1 to 7 will have a weightage of 35% to 40%.
Chapter number 8 to 12 will have a weightage of 35% to 40% again. After that, matlab after chapter number 12, there is one more chapter, that is chapter number 13, and that is case study. Case study, I have not written it as a separate bifurcation, as because the case study has been given with respect to chapter number 1 and 12. Chapter number 1 to chapter number 12, so related ही case studies आपको separately in chapter number 13 provided है, ठीक है? तो case study belongs to these chapters only. And the weightage of the case study in examination will be 20% to 30%. So I hope you have understood the pattern of your paper now. Strategic cost management and decision making, which will comprise of chapters like relevant costing and all. Okay. So that will have a weightage of 35% to 40%. Then performance evaluation and control techniques like standard costing, budgetary control. Okay. Will have a weightage of 35% to 40%, and you will also be provided in the examination with case study question, wherein you need to apply your analytical mind and decide what would be the right strategy, okay, how to gain much out of it. You'll have to work as an CEO of the company, you'll have to act as an CEO of the company, you'll have to be a decision maker, right? And for that case studies, which will be dependent on chapter number 1 to 12, and the case study will contain weightage of 20% to 30% marks. I hope इतना clear है आपको? Why has your paper been modified as such? As because all the international papers for this subject are more like analytical paper. ठीक है, हमारी इंस्टीट्यूट ने अभी तक जो कॉस्टिंग के पेपर बना रखे थे, that was more like an calculation based paper. ठीक है, but nationally as well as internationally everybody knows it that कि there are several tools in the market nowadays. ठीक है, Excel एक बहुत अच्छा tool है. एंड यू डोंट नीड टू बी सच कैलकुलेटिव. आपको बहुत कैलकुलेशन करना आता है, ये बात बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. एक्सेल अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टूल है जिसके जरिए आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो सिंस दीज कैलकुलेशंस कैन बी डन इजिली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाई शुड यू अप्लाई योर माइंड इनटू कैलकुलेशंस? ठीक है, तो कैलकुलेशन हैज बीन गिवन लेस इंपॉर्टेंस एंड मोर इंपॉर्टेंस, मोर फोकस हैज बीन मेड ऑन टू योर एनालिटिकल स्किल. आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, आप डिसीजन बहुत अच्छा ले सको, ये कोर्स का पूरा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, यू विल फाइंड कि दिस पेपर हैज कन्वर्टेड इनटू मोर ऑफ इवन अ थ्योरेटिकल टाइप. ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आपको जाननी होगी, बहुत सारी स्किल्स जो बाहर यूज हो रही है इंटरनेशनली, वो भी आपको यहाँ पे देखनी होंगी. व्हेन यू विल जस्ट गो थ्रू योर मॉड्यूल, यू विल रेफर योर मॉड्यूल, तो व्हाट यू विल फाइंड कि बहुत सारे कंटेक्स्ट दिए हुए हैं. देयर आर सेवरल कंटेक्स्ट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड आफ्टर दैट अ रेफरेंस हैज बीन गिवन. एंड व्हाट दैट दोज रेफरेंसेस आर, those references are कि from where these matters have been taken, from where these matters have been copied, and what you will find कि those references are of certain foreign authors books. ठीक है, those are even taken from Seema London, right? So now let us move ahead and look at the entire syllabus. We'll have an overview of what we are going to study throughout our course. This is your syllabus, and 100 marks paper, paper number 5, that is CA final group 2. Strategic cost management and performance evaluation, which has been further divided into two categories, part A and part B. Part A is strategic cost management and the part B is performance evaluation. And you can say these two contains equal weightage in the examination too. Part A strategic cost management and decision making, and performance evaluation वाला जो part है that will be called as performance evaluation and control. Part A strategic cost management and decision making. तो चलिए हमने बताया कि इसमें पार्ट ए कंप्राइजेस ऑफ 7 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, लेकिन जो हमारी बुक आपको मिलेगी उसमें 7 चैप्टर्स नहीं होंगे, दैट विल कंप्राइज ऑफ मोर चैप्टर्स, एज बिकॉज आई हैव बाइफरगेटेड सिंगल चैप्टर इनटू सेवरल स्मॉलर चैप्टर्स, राइट, depending upon the concept which has to be provided to you. matlab on every separate concept I just divide the chapters so as to make it simpler for you. So according to institute's module, the chapter number 1 is introduction to strategic cost management. What is this introduction to strategic cost management? This is basically a definition based chapter
wherein you will find what is the definition of strategic cost management, what is the strategic cost management, and how it is different from the traditional cost management. ठीक है, जो हम पहले कॉस्ट मैनेजमेंट करते थे उससे ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट है. तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज मोर ऑन टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एनालाइजिंग द थिंग, whereas earlier cost management was more on to calculation basis. ठीक है, how to just calculate cost, this is more on to how to reduce cost. दो चीजें होती हैं, एक होता है कि लागत कितनी आ रही है, माल बनाया लागत कितनी है, दूसरा होता है लागत कम कैसे करनी है, ऐसा कौन सा काम करें कि लागत और कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, so as to gain more out of it. ठीक है, तो you'll find strategic cost management definition and the difference between strategic cost management and the traditional cost management. सेकेंड चैप्टर इज मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट. मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट का मेन फोकस जो है वो ये है कि हाउ टू मेक योर कस्टमर सेटिस्फाइड, अपने कस्टमर को कैसे खुश रखें. बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड, इनफैक्ट आई से एन इक्वेशन, कस्टमर डिससेटिस्फाइड इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ बिजनेस. अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो बिजनेस चल नहीं पाएगा. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट इज कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में कस्टमर को कैसे खुश रखा जाए. एंड नॉट ओनली कस्टमर, इवन द एम्प्लॉइज आर मेन रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंड इन द एम्प्लॉइज आर नॉट इवन हैप्पी, यू कैन नॉट थिंक ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो इसमें हम लोग बड़े सारे चैप्टर पढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब यह है कि अगर हम अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या कॉस्ट इंकर करना पड़ता है. कस्टमर की डिससैटिस्फैक्शन की कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ती है. ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज बेसिकली द कॉस्ट दैट वी नीड टू पुट इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई कस्टमर. ठीक है, इसमें और भी चीजें आप पढ़ेंगे. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट. वो ये कहता है कि कैसे लागत को कम किया जाए, और अगर कंपनी की लागत कम हो जाती है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो जो बचत हो रही है, ठीक है, उसी को गेन कहा जाता है. और इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि आप इस गेन को अपने इंप्लॉइज के साथ शेयर कीजिए. जब आप अपने इंप्लॉइज के साथ शेयर करेंगे तो दे विल जस्ट फील मोर मोटिवेटेड इनटू द कंपनी एंड देयरफॉर दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है विच वी आर गोइंग टू सी. आउटसोर्सिंग, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द वर्क shall not be done by the company itself, shall not be done by the manufacturing unit. वो हम क्या करेंगे, किसी और को दे देंगे कि ये पोर्शन आप कर लो. एज बिकॉज कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारी लागत ज्यादा आ रही है लेकिन वो सस्ते में ही हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो शर्ट की पूरी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है लेकिन बटन खुद नहीं लगाती. बटन लगाने का काम शर्ट पे आउटसोर्स कर देती है, किसी और को दे देती है. तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉस्टिंग निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को आउटसोर्सिंग की कॉस्ट से कंपेयर करें और डिसाइड करें कि व्हाट टू डू. लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. व्हाट इज लीन सिस्टम? लीन सिस्टम का मतलब होता है मिनिमाइजिंग वेस्ट. JIT, what is this JIT? JIT is just in time. ठीक है, आपने पहले भी इस JIT कॉन्सेप्ट सुन रखा होगा. जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि जिस समय जितने मटेरियल की आवश्यकता हो उतना मटेरियल ही परचेज किया जाए. ठीक है, डू नॉट बाई सरप्लस. ठीक है, बिकॉज अगर हम सरप्लस बाई करेंगे तो हमें उसे स्टोर करना होगा और स्टोरेज की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी. ठीक है, तो स्टोरेज की कॉस्ट बचाने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं इन मटेरियल परचेज, that is called JIT. JIT is basically a term which is used in Japan. और अगर हम यूएस में बात करें तो यही जस्ट इन टाइम को ही क्या बोला जाता है? लीन सिस्टम. ठीक है, लीन सिस्टम मतलब मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड फोकसिंग मोर ऑन टू दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स. ठीक है, मतलब वेस्टेजेस को हटाओ, उस पे फोकस करो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ. तो उसके लिए हम लोग कुछ और थ्योरीज भी देखेंगे. काइजन थ्योरी, 5S, दीज आर ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कि हम लोग किस तरीके से वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा. कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉस्ट कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग. ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है?
वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब होता है लागत तो कम करेंगे, लेकिन इस तरीके से लागत कम करेंगे कि कस्टमर को फर्क ही ना पड़े। से फॉर एग्जाम्पल कि हम एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, वी आर अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड हम जो मोबाइल बनाते हैं वो सिर्फ बिजनेस क्लास यूज करता है, ठीक है। व्हेन द मोबाइल इज बीइंग यूज्ड बाय बिजनेस क्लास, तो उनकी जो मेजर फोकस होती है कि दे कैन use window, they can use excel, they can use powerpoint, they can properly do the email on their mobile phone. That is their basic requirement. They do not require 22 megapixel camera into it, ठीक है। तो what we have decided to add certain more features relating to businesses and reduce the camera megapixels. in order, इससे क्या होगा कि हम कैमरे की मेगापिक्सल को कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कैमरे पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन कस्टमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज बिकॉज, क्योंकि कस्टमर तो वो मोबाइल कैमरे की वजह से परचेज नहीं करता है, उसे तो बहुत ज्यादा सेल्फी लेनी नहीं है, ही इज लुकिंग इनटू सम बिजनेस फीचर्स इनटू द मोबाइल, ठीक है। तो हमने कुछ बिजनेस फीचर उसमें ऐड कर दिए और कैमरे की क्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, जिससे कस्टमर को फर्क भी नहीं पड़ा और मेरी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो गई। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं। विल सी इनटू इट। पैरेटो एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। What is this environmental management accounting? कोई भी इंडस्ट्री है जो पॉल्यूटिंग गैस वगैरह एमिट कर रही है या फिर उनके यहां से वेस्ट गंदे पानी निकल रहे हैं, तो दे आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट कि यू विल हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन टू कि हाउ मच यू आर जस्ट पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स विच यू हैव क्रिएटेड टू द इन्वायरमेंट। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी है जो ये कहती है, बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो ये कहती है कि अगर आप नेचर को पॉल्यूट कर रहे हो, उसे खराब कर रहे हो, तो आपको उसकी भरपाई भी करनी होगी। मतलब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी जिससे आप क्या कर सकेंगे, जो प्रॉब्लम आपने इन्वायरमेंट में डाली है वो प्रॉब्लम आप रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉस्टिंग करनी पड़ती है कि अगर हमने इतना पॉल्यूशन किया है, उसको रेक्टिफाई करना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए हमारी क्या लागत लगेगी। तो दिस इज बेसिकली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स। ये क्या है? स्पेसिफिक सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर दैट इज आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर। आपने इंटरमीडिएट लेवल पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, दैट इज सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन जब हम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग अभी तक करते थे तो व्हाट वी हैड मेनली सीन वाज कि ट्रांसपोर्ट, ट्रक वगैरह के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते थे, ठीक है। वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग होटल, हॉस्पिटल, इनकी कॉस्टिंग की हमने बात की थी। बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड पावर सेक्टर। अभी पार्ट ए ही चल रहा है। पार्ट ए में भी 1 और 2 किया गया है, जैसे हमने बताया था कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पार्ट ए का पार्ट 1 था, पार्ट ए का पार्ट 2 जो है दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अभी हम लोग यहीं पे हैं, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये देख लिया, अब डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं। सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये आप मार्जिनल कॉस्टिंग में देखे हुए हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग, तो इनफैक्ट अगर हम बात करें रेलेवेंट कॉस्टिंग की तो एंटायर सिलेबस वाज ऑन टू रेलेवेंट कॉस्टिंग, द ओल्ड सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग इनफैक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग आता है ना तो आपको पूरी कॉस्टिंग आती है, दिस समवॉट लाइक दैट, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप सब कुछ समझ सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड रेलेवेंट कॉस्टिंग तो कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से भी बाकी चीजें अपने आप आ सकती हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज इनफैक्ट एन अपोजिशन टू ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट्स। आपने इंटरमीडिएट लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पे जो ओवरहेड रिकवरी के रेट्स पढ़े थे, ठीक है। मटेरियल ऑन ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल
यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर यूनिट। तो ये सब जो आपने पढ़ रखे थे वो क्या होता था कि हम सारे ओवरहेड को एग्रीगेट करते थे। ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चा। हम सारे इनडायरेक्ट खर्चे को एग्रीगेट करते थे, एक रीजनेबल बेसिस लेते थे और उसके बेसिस पे ओवरहेड के खर्चे को डिवाइड कर देते थे। कैसे बांटते थे? सपोज इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मेरे इनडायरेक्ट खर्चे तो कॉमन है, किराया भाड़ा ये सब जो लग रहा है ये तो कॉमन खर्चे हैं, इसको कैसे 2 प्रोडक्ट पे बांटेंगे? तो उसे बांटने का तरीका ये होता था कि कोई एक रीजनेबल बेसिस ले लीजिए, या तो मटेरियल कॉस्ट ले लो, या तो लेबर कॉस्ट ले लो, या तो प्राइम कॉस्ट ले लो, कोई एक रीजनेबल बेसिस ले लो, खर्चे को बांट दो, सारे के सारे खर्चे को एक ही रीजनेबल बेसिस पे बांट दो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसके प्योरली अगेंस्ट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? कहता है सारे खर्चे को एक रीजनेबल बेसिस लेके नहीं बांटना चाहिए। और यही आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पे ओवरहेड में, कि हम लोग क्या करते हैं, एक रीजनेबल बेसिस लेते हैं और ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल के ओवरहेड को बांट देते हैं। ये कहता है कि आप हर इनडायरेक्ट खर्चे को अलग अलग बेसिस लेके बांटो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी एक्टिविटी कितना इन्वॉल्व कर रहा है। अगर मेरे 2 प्रोडक्ट है ए एंड बी, तो सारे खर्चे को एक ही बेसिस पे प्रोडक्ट ए एंड बी में नहीं बांटो, हर खर्चे को रिलेट करो कि वो खर्चा किस एक्टिविटी की वजह से है और उस एक्टिविटी को कितना ए यूज करता है और कितना बी यूज करता है। मतलब फॉर ईच एंड एवरी ओवरहेड यू विल हैव टू डिटरमिन अ डिफरेंट रीजनेबल बेसिस, एंड डिफरेंट रीजनेबल बेसिस के पे आप क्या कीजिए, हर एक खर्चे को बांटिए। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसे इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, ये ओवरहेड बांटने का ये मॉडर्न तरीका है। दिस इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट। इसमें हमें डिसीजन मेकिंग भी करनी होगी। डिसीजन मेकिंग अब क्या है भाई? रीजनेबल बेसिस तो डिसाइड करना होगा ना कि इस खर्चे को बांटना कैसे है, ठीक है। हर खर्चे को बांटने के लिए अलग अलग बेसिस होना चाहिए, लेकिन वो बेसिस प्लान करना होगा कि व्हाट इज द राइट बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस कॉस्ट। तो हम लोग उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग को भी देखेंगे। एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। इट्स नॉट ऑलवेज मनी। क्या आपको लगता है कि टाटा जैसी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं? बहुत सारे काम वो ऐसे भी करते हैं विच इज नॉट फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं विच वी डू फॉर द सोसाइटी। अरे पैसा भी तो कहां से कमा रहे हैं? इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं, तो इस सोसाइटी के लिए कुछ करने का भी दायित्व बनता है आपका। तो बहुत सारी जगह पे एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को भी हम कंसिडर करेंगे व्हाइल टेकिंग डिसीजंस, कि अच्छा ऐसा करने से ये भी तो दुआएं भी तो मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं देखेंगे कि अच्छा यहां तो 100 रुपए कम आ रहे हैं तो वी शुड नॉट गो फॉर सच एंड सच डिसीजन। नहीं, यहां 100 रुपए कम आ रहे हैं लेकिन 100 रुपए के बदले में 1000 रुपए की दुआएं आ रही हैं, तो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो विल कंसिडर सर्टेन, देखिए ये प्योर दिस सब्जेक्ट हैज टर्न्ड आउट टू बी एन एनालिटिकल सब्जेक्ट. This is pure a decision making subject wherein you need to consider several factors, not only the financial factors, even the non-financial factors. Pricing strategies, basically pricing strategies का मतलब ये है कि how will you decide pricing for a product. So you'll have to see your own cost, you'll have to see competitors prices in the market. So there are several things which need to be thought of. The competition in the market, there are several things that need to be thought of while deciding the price for a product. So you'll learn here ki what are the factors that need to be considered while planning the pricing for a product. Performance evaluation and control, that is part B. Performance evaluation सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस. Benchmarking and all these are comparative analysis. Basically performance evaluation का मतलब है evaluating your performance. हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि हम कैसे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. वेयर आई एम स्टैंडिंग इन कंपैरिजन टू माय ओन फाइनेंशियल डाटा. हम पिछले साल के कंपैरिजन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में कहां स्टैंड कर रहे हैं. तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग कॉस्टिंग के बड़ी सारी टेक्निक्स को समझेंगे. देयर आफ्टर कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब होता है कि हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कैसे लगाएंगे, हम कैसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी लागत ज्यादा न लगे, ठीक है. हमारी कॉस्ट ज्यादा न लगे, इसको रोकने के लिए क्या बचाव है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल,
ठीक है। तो इसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, दैट इज बजटरी कंट्रोल। हम बजट बना लेते हैं, ठीक है, और एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते रहते हैं, जहां भी डेविएशन आता है तुरंत टोक देते हैं जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंसेस निकालते हैं, मटेरियल का यूसेज तो ज्यादा नहीं हो गया, मटेरियल की प्राइस तो ज्यादा नहीं हो गई, लेबर का रेट तो ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है, लेबर की एफिशिएंसी तो कम नहीं हो गई। इन सारी चीजों को हम इवैल्यूएट करते हैं और क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल लगाए रखते हैं। तो ये चैप्टर्स को हमें देखना होगा। यहां पे देखिए, कंट्रोल के अंदर बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक बात लिखी हुई है, एनालिसिस ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस। एडवांस्ड वेरिएंसेस का मतलब है जो फर्स्ट लेवल वेरिएंसेस है उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो आपने लोअर लेवल पे पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग बेसिक वेरिएंसेस किसको कहते हैं, जो पहली ब्रांचेस होती है वेरिएंसेस की, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की पहली बाइफर्केशन क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की पहली बाइफर्केशन क्या होती है, लेबर रेट वेरिएंसेस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस। कह रहा है कि उन पे फोकस कम करना है, वी हैव टू फोकस मोर ऑन टू एडवांस्ड वेरिएंसेस। लाइक अगर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फर्दर बाइफर्केशन करें, मटेरियल तो क्या आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है, वो कहलाता है एडवांस वेरिएंस। जो पहली ब्रांचेस टूटती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो बेसिक वेरिएंसेस हैं। फर्दर जितनी ब्रांचेस टूटती हैं वो क्या होती हैं, वो एडवांस वेरिएंसेस होती हैं। तो फोकस जो है वो आपका एडवांस वेरिएंसेस पे होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के इंटीग्रेशन भी देखना होगा, मतलब वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग भी निकालनी होगी। तो यहां पे बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड वेरिएशंस वगैरह वेरिएंसेस हम लोग निकालना सीखेंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या चीज है कि अगर इतने बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस कौन से वेरिएंसेस, इधर कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल वेरिएंसेस। कॉस्ट घट गई होगी या सेल कम हो गई होगी, ठीक, कॉस्ट बढ़ गई होगी, सेल कम हो गई होगी, यही सब तो कारण होंगे मेरे प्रॉफिट गिर जाने के। तो मेरी प्रॉफिट गिर गई है या बढ़ गई है, उसके पीछे क्या कारण है, वो वेरिएंसेस से हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएंसेस को एडजस्ट कर दें अपने बजटेड प्रॉफिट में, विल कम टू एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की रिकंसाइल करना ये सीखेंगे। एक नई चीज भी है, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट बी। नाउ कमिंग टू पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए केस स्टडी आपको पढ़नी है एंड कवरिंग द इंटायर कोर्स कॉन्सेप्ट, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12। फॉर ऑल द चैप्टर्स यू विल हैव केस स्टडी। Case study, what is this case study? You will be put into certain scenarios, certain situations wherein you will have to decide कि what the company should adopt, what should be the right strategy, ठीक है, how the costing should be applied, what would be the costing technique, so that you will have to plan। पता है पहले जो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स था उसमें दो पार्ट था, एक तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट था और दूसरा पार्ट था आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको ऑपरेशन रिसर्च भी कहते थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक। देयर वर सेवरल चैप्टर्स इनटू दोस क्वांटिटेटिव टेक्निक। आज नए सिलेबस में कोई भी क्वांटिटेटिव टेक्निक के चैप्टर नहीं है, लेकिन दो ऐसे चैप्टर हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक की जिसकी इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन दूसरे चैप्टर में होगी। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन, आई डिडंट से डायरेक्टली विल बी यूटिलाइज्ड इन द चैप्टर्स, ठीक है। देयर विल बी नो डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम ऑन टू लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लर्निंग कर्व। दीज आर मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, दीज आर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इनकी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसे यूज किया जाएगा। तो ये दो चैप्टर्स भी आपको हमारे साथ देखना होगा, ठीक है। हम लोग इसकी कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ सीखेंगे, एज बिकॉज जब तक हम लोग इसको इन डेप्थ तरीके से नहीं जानेंगे, इसको दूसरी जगह भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। एक नोट यहाँ पे जो डाला हुआ है वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड फॉर लिंकेज टू द कोर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन दो चैप्टर को हमें एक दूसरे चैप्टर की लिंकेज को समझने के लिए करना है, दूसरे
चैप्टर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मैथमेटिकल टेक्निक को अप्लाई करना है, तो देयरफॉर विल स्टडी दीज 2 चैप्टर्स आल्सो। ठीक है, पहले ये 2 सेपरेट चैप्टर्स हुआ करते थे, पहले इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते थे, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग